ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. فردوس عاشق اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر رہ چکی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، اور سیالکوٹ سے ایک ون آف دا انفارچونیٹلی کہہ دیں بیکاز آئی تھنک اور عورتوں کو بھی ڈائریکٹ الیکشنز میں اترنا چاہیے، ون آف دا فیو ویمن جو غالباً آئی تھنک 80,000 ووٹ لے کے جیتی تھیں اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، اور اب تحریک انصاف کا حصہ بن چکی ہیں. ہمارے ساتھ شوکت بسرا موجود ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جیالے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. امتیاز گل صاحب آپ سے آغاز کروں گی، بتائیے گا کہ یہ پیپلز پارٹی کا زوال جو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کیوں ہے؟ کیا پارٹی اپنی سمت کھو بیٹھی ہے یا اپنا فلسفہ کھو بیٹھی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹس نیدر آف دا ٹو اینڈ مے بی اٹس جسٹ بیکم اے پرائیویٹ کمپنی آف سارٹس؟ دیکھیے، جب سے زرداری صاحب منظر عام پہ آئے تھے تو میرا خیال ہے رفتہ رفتہ اس کا یہ زوال شروع ہو گیا تھا. بڑی ایک انوکھی مثال ہے آصف علی زرداری صاحب کی کہ خود پارٹی کے اندر نجی محفلوں میں ان کے بڑے قریبی ساتھی ان کی کافی برائیاں کرتے تھے. نفرت تو میں نہیں کہوں گا لیکن ناپسندی کا اظہار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس ملک کے صدر بھی بن گئے، کمانڈر ان چیف بھی بن گئے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس ملک میں جس انداز میں چند لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، حکمران ایک ٹولہ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ دوسری جماعتیں ہیں، اس سے چھٹکارا بڑا مشکل ہے، اور تمام تر معاملات زیادہ تر انہی کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو جس کو گراس روٹس کہتے ہیں، یعنی عام لوگوں سے ڈسکنیکٹڈ بھی ہو گئے پھر نا. کیونکہ اگر آپ کا مطمع نظر صرف اپنے باس کو خوش کرنا ہے، جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے یا کابینہ کا اجلاس ہے، اس میں آپ صرف وہ بات کریں جو کہ آپ کا صدر یا آپ کی پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ سننا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں پھر عوامی سطح پہ پھر آپ کی پذیرائی تو نہیں ہوگی. لوگ ڈسگرنٹل ہوتے ہیں، اور اس میں دیکھیے اگر لوگوں نے صرف ڈیولپمنٹ اسکیموں کے ذریعے خوش ہونا ہوتا تو جس طرح کام یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے علاقے میں ملتان میں کیا، میرا خیال ہے ان کو تو بالکل تمام ان کو سیٹیں وہاں سے جیتنی چاہیے تھی، لیکن جس شکست کا انہیں سامنا کرنا پڑا اپنے اس ایکسٹینڈڈ علاقے میں، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ لوگوں میں، عام لوگوں میں اور پارٹی کی قیادت میں فاصلہ کافی بڑھ گیا ہے. لوگ خود کو ایسوسیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس پارٹی کے ساتھ. How ironic and sad، ایک ایسی جماعت سے کہ جو نام ہی ایک عام آدمی کا لیتی تھی، جس کی پہچان ہی کسان ہے، ٹریڈ یونینز ہیں، سول سوسائٹی تھی، جس کی پہچان یہ سارے طبقات، تو آپ کو لگ رہا ہے یہ سارے ایلینیٹ ہو گئے کافی حد تک. جو عوامی قوت کا سرچشمہ جو تھے عوام تھے، اور عوام سے اگر آپ بالکل کٹ کے رہ جائیں تو اس میں لا محالہ آپ کو زوال ہی دیکھنا پڑتا ہے. دوسری جماعتوں میں بھی یہی حال ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ گزشتہ انتخابات میں بھی جو ووٹر بیس ذرا بڑھی تھی وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے، لیکن جنرلی اب دیکھیں نا مسلم لیگ کو جو کہ ان کے حصے میں ہوتی تھی، مگر جی تو ووٹ شفٹ بھی ہوا ہے. ووٹ کی جو روایتی جماعتیں ان کا ووٹ کم ہوا ہے، وہ دوسری جماعتوں کی طرف جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک نئی نسل سامنے آئے، نوجوان جو آئے ہیں نا، وہ نہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، نہ نواز لیگ کے ساتھ کرتے ہیں، نہ وہ کیو لیگ کے ساتھ. تھوڑے بہت ضرور ہوں گے، میں نہیں کہتا، لیکن یہ ایک حالات میں مسلسل ایک تغیر آ رہا ہے. ابھی میں جاننا چاہوں گی ایونچولی کہ بھئی کیا بات ہے ایک نئی قیادت with fresh young blood، why is بلاول not able to capture the imagination؟ مگر اس سے پہلے میں فردوس صاحب آپ کے پاس آؤں گی. آپ نے تو اپنی سیاسی کریئر کا عروج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھا، وفاقی وزیر بنی، اور مجھے یاد ہے آپ قدرے جذباتی بھی ہوئیں جب آپ نے استعفیٰ دیا. you were very upset at that time. تب بھی آپ نے کہا کہ بھئی مجھے یہ کوٹ آن کوٹ، if I remember، آپ نے یہ بھی کہا کہ بھئی مجھے یہ اگر پارٹی کو میں قبول نہیں ہوں تو مجھے سیٹ نہیں چاہیے، رائٹ؟ اٹ واز آل اباؤٹ دا پارٹی. ایک پارٹی سے ایک جو افینٹی تھی اور جو محبت تھی اور ایک وہ نظر آ رہی تھی. کیا ہوا؟ مجھے یاد ہے اس وقت کی لیڈرشپ جو ہے، میرا بھائی مجھے کراچی لے کے گیا، زبردستی مجھے چھٹی پہ منگوایا، میں پاکستان آئی تو انہوں نے میری ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. جب ان کو پتہ چلا کہ میں یو این میں ہوں، میری سیلری ڈالرز میں ہے، تو میرے بھائی کو علیحدہ کر کے یہ کہا گیا کہ 5 کروڑ آپ کو ٹکٹ دے دیتے ہیں، 5 کروڑ پارٹی فنڈ میں دے دیں. جب میرے بھائی نے باہر آ کے مجھے کہا کہ ٹکٹ تو ہمیں ملے گی لیکن 5 کروڑ روپیہ وہ مانگتے ہیں پارٹی فنڈ کے لیے، میں نے کہا جی یہ آپ کا انٹرسٹ تھا، میرا نہیں ہے. میں پارلیمنٹ کے اندر نہیں آنا چاہتی ہوں، میں ایک سوشل ورکر ہوں، میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میں یو این میں کام کر رہی ہوں، مجھے کیوں یہاں آ کے دھکے کھانے ہیں؟
آپ اپنی پارٹی نے آپ کی قیمت آپ کی جماعت نے 5 کروڑ لگائی ہے پیپلز پارٹی میں لایا گیا میں مطلب 5 کروڑ آپ کی جماعت نے آپ کی قیمت لگائی ہے آپ کے قلعے کاٹنے کی آپ کی قیدیں بھگتنے کی ماشاء اللہ کا مقابلہ کرنے کی قیمت آپ کی لگی ہے 5 کروڑ اب آپ جانے آپ کی جماعت جانے میں پیسے دے کے ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں ایک طرف یہ تھا مائنڈ سیٹ دوسری طرف یہ تھا کہ پلیٹ میں رکھ کے مجھے اس اعزاز کے طور پہ جو میں ورلڈ اسمبلی آف یوتھ میں ریپرزینٹ کر رہی تھی پاکستان کو مجھے وہ اسمبلی میں لایا گیا پھر وہ مجھے بی بی کے پاس لے کے گئے 2007 کی بات ہے یہ بی بی نے کہا میں نے بی بی سے کہا کہ بی بی میرے ساتھ زیادتی ہوئی آپ نے میرے بھائیوں کی قیمت آپ کی جماعت نے 5 کروڑ لگائی ان کی قربانیوں کی اس لیے میری مجبوری تھی انہوں نے کہا کہ نہیں اوکے یو گو اینڈ کانٹیسٹ اس وقت بھی بہت زیادہ پارٹی میں اپوزیشن ہوئی انہوں نے بی بی سے کہا کہ جس کو آپ ٹکٹ دے رہی ہیں یہ تو کونسلر بھی نہیں منتخب ہو سکتی پھر وہ دیکھا آپ نے کہ وہ شہید لیڈر نے جو میرے پہ اعتماد کیا اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی میں نے 42,000 سے لیڈ سے اس وقت کے سٹنگ سپیکر کو ہرایا اور بی بی شہید نے مجھے کال کی اس وقت کہ ساری کانسٹیچوئنسیز میں جہاں خواتین لڑ رہی ہیں وہاں میں جا رہی ہوں ان کو بیک اپ کرنے کے لیے میں تمہارے حلقے میں بھی آنا چاہتی ہوں میں نے انہیں کہا نہیں کیونکہ میرے مخالفین یہ کہیں گے کہ میری بازو میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں سیٹ نکالتی بی بی نے آگے میرے حلقے میں جلسے کیا اس لیے میں نے سیٹ نکال لی ہے صورتحال یہ تھی کہ جو ایک گروپ تھا پارٹی کے اندر جو بینیفیشریز تھے اس سارے پارٹی کے کلچر کے اور سسٹم کے ایون کہ جب بھی میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی 5 سال میں اس گورنمنٹ میں تو رہی لیکن اس گینگ نے مجھے چین نہیں لینے دیا کون سا گینگ تھا اس میں بے شمار لوگ ہیں جو کہ جب میں زرداری صاحب کو جا کے یہ بات بتاتی کہ صاحب میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہم بھی سنتے تھے ایک مثال آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں انفارمیشن منسٹر تھی جی آپ مجھے بتائیں کہ میں خود تو نہیں بنی تھی نہ میں نے ڈیزائر کی تھی پارٹی کا فیصلہ تھا قیادت کا فیصلہ تھا جس صاحب کو ہٹا کے مجھے انفارمیشن منسٹر بنایا گیا ان کی کرسی پارلیمنٹ کے اندر ایز اے انفارمیشن منسٹر الاٹ رہی میں 1.5 سال انفارمیشن منسٹر رہی وہ منسٹر نہیں تھے کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے لیکن اس گینگ کے جو سرگنا تھے جو چیف ویپ تھے اس وقت پارلیمنٹ میں جن کے کہنے پہ سیٹیں الاٹ ہوتی تھی انہوں نے مجھے وہ انفارمیشن منسٹر کی کرسی نہیں دی اور میں 5ویں رو میں مجھے سیٹ الاٹ کی گئی شہباز بھٹی مرحوم اس نے اپنی سیٹ مجھے ایکسچینج کی غیرت کھا کے کہ ایک انفارمیشن منسٹر 5ویں رو میں بیٹھے گا مجھے ڈی گریڈ کرنے کے لیے وہ سیٹ دی گئی آپ نے پارٹی کیوں چھوڑی آپ ڈسلوژن دیکھیں پارٹی یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے میرے کنسرن ریزرویشن پارٹی کے ساتھ اپنی جگہ میری اپنی مطلب گھر کے اندر جس جگہ آپ رہتے ہیں سارے گھر کے افراد کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ضروری نہیں کہ آپ بنے آپ کے اختلافات بھی ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی میرا گھر تھا آج بھی میں آئیڈیولوجیکلی سمجھتی ہوں کہ بھٹوازم ہی اس ملک کے لیے نجات کا راستہ تھا جس سے ہم ڈیویٹ ہوئے اس بھٹوازم نے جس نے عام بندے کو شناخت دی دل ابھی بھی بھٹو کا ہے دل بھٹو کا ہے ہاتھ میں بس بیٹ پکڑ لیا نہیں ایشو یہ ہے کہ دل میں بھٹو بستا ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ وہاں بھٹو کے جتنے تھے نا چاہنے والے وہ ڈسکنیکٹ ہو کے سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں واپس آنے کا شکریہ ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. بسرا صاحب جس طرح میں کہہ رہی تھی کہ آپ کی پنجاب کی صفحے اول کی کھلاڑی تو مایوس ہو گئیں ڈسلوژن ہوگی ان کا ایک ڈائریکٹ راستہ یا بلکہ ایکسپیرینس تجربہ رہا نہ صرف گلی محلوں کا مگر ہائیسٹ پاور کوریڈورز کے اندر جس طرح گروہ بندی ہوتی ہے جس طرح لائلٹی شفٹ ہوتی ہیں کیا پرائرٹیز ہوتی ہیں. تو سر یہ جو ایشوز کا یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ان 4 سالوں میں نہ آپ اپوزیشن بینچز میں رہیں نہ آپ ٹریجری بینچز میں رہیں یہ ایشوز تو آپ جیسے لوگوں کو بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا 2018 میں. یہ جو ہمیں تو چند صاحب سے لے کے ہر کوئی بتاتا ہے کہ یار یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ووٹر کے ساتھ. ہمیں مہر میں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کی طوطا مینا کی رام کہانی بڑے سکون سے میں نے سنی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اتنا ٹائم دیں گی. دیکھیں بات پتہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک عروج و زوال کی داستان ہے اس میں کوئی قطعی شبہ نہیں ہے. 90% لوگ اس وقت جو پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کہیں نہ کہیں الیکٹ ہو کر یا پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کرنے کے بعد مختلف پارٹیوں میں گئے ہیں. اور ابھی میں تھوڑا سا یہاں سے شروع کر لیتا ہوں. شہید بی بی کو دور میں بھی کچھ انکلز اور کچھ آنٹیاں شہید بی بی کو چھوڑ گئی تھی. ابھی جب بلاول صاحب میدان میں نکلے ہیں
कुछ अंकल और आंटियां अब भी छोड़ रही है पीपल्स पार्टी को, और ये कोई अपने नजरिए के मुताबिक या अपने असूलों पे नहीं छोड़ रही। पाकिस्तान की सियासत में मुफाद परस्तों का, दूध पीने वाले मजनू का और ज़मीर फरोशों का एक जुमा बाजार लगा हुआ है। इनको उस वक्त सब अच्छा नजर आता है जब वो वजीर होते हैं, जब पार्टी इक़्तिदार में होती है। अभी वो डॉक्टर साहब कह रही थी ना, कुर्सी मेरी कुर्सी मुझे नहीं दी गई। प्रॉब्लम सिर्फ यही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा नेगेटिव पहलू, और इसको मैं गंद कहूं, यही है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए का सौदा, अपने मफादात के ताबे वो पार्टियां बदलते रहते हैं। आप मुझे देखिए कि मियां नवाज शरीफ के साथ आज 90% वो लोग हैं जो परवेज मुशर्रफ के साथ थे, और ये वही लोग हैं जो कहते थे नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जब नवाज शरीफ ने मुड़ के देखा तो कोई आदमी साथ नहीं था। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब फरमा रही थी कि जी देखें पीपल्स पार्टी अपने नजरिए से हट गई, पीपल्स पार्टी अपनी सोच से हट गई। मुझे वो बता दें कि डॉक्टर साहब, आप तो, मैंने लास्ट टाइम जब आपने पीपल्स पार्टी अभी नहीं छोड़ी थी उस वक्त आप भी आप अलम बुलंद किए हुई थी। जरदारी साहब की जितनी कसीदा खानी, जितनी खुशामद आप करती थी, शायद मैं अब वो बातें नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं एक एहतराम का रिश्ता रखना चाहता हूं। आप मुझे बताइए जरा वो क्लिप चला दीजिए डॉक्टर साहब महर, जिसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा बच्चों की तरह बिल्क बिल्क कर रो रही थी जब इनसे वजारत ली गई। इनके मैं वो नहीं कहता कि शौकत साहब, आप 100 शौकत साहब कता कलामी माफ, आप 100 दफा आपको लग सकता है, हो सकता है आपकी ओपिनियन हो कि मुफाद परस्ती में पार्टी तब्दील की गई है, मगर साहब आप इससे तो नहीं इनकार हो सकते ना कि पीपल्स पार्टी अभी जवाल का शिकार है। आप कितने लोगों को मुफाद परस्त कहेंगे, कितने लोगों को कहेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, मैं दरमियान में नहीं बोला। डॉक्टर साहब अभी आप नहीं बोलेंगी, मैं दरमियान में नहीं बोला। आपने आधा घंटा आपने वाज किया, खिताब किया, अब आप सब्र करें ना, अब आप सब्र करें, मुझे बात करने दें। उन्होंने बात की, मैं दरमियान में नहीं बोला। डॉक्टर फिरदौस को निकाल दें आप अंदर से, डॉक्टर फिरदौस को निकाल दें। 35 साल नजर गोंदल जो है वो क्यों गया पार्टी छोड़ के? मुझे बात मुकम्मल करने दें। जी शौकत, अभी तो महर देखिए ये कोई तरीका नहीं है। आप, मैंने वो बात कर रही थी, मैं दरमियान में नहीं बोला। अच्छा, बात ये है, मैं इस बात पे आऊंगा मैं, लेकिन स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा के हवाले से। अब व्हाई डॉक्टर फिरदौस, इसलिए अटैचमेंट सुनाई है ना, इसलिए कि आप अपनी सुन लें, आईना दिखाया तो नजर गोंदल ज्वाइन कर चुका है। उसके ऊपर आप तीनों मिनिस्टर रहे या तीनों उसी कैबिनेट मिनिस्टर थे। मुझे खराब कहानी सुना लेने दें। आप जो अभी फरमा रही थी कि जी मुझे गैंग ऑफ 4 का डोला होता था, जरदारी साहब आप गैंग ऑफ 4 मैंने नहीं कहा, गैंग ऑफ 4 मैंने नहीं कहा, आप खुद कह रहे हैं, वजाहत कर दें, आप खुद कर रहे हैं, वो रियाज बशीर साहब ने, वो रियाज बशीर साहब ने आर्टिकल छापा। सब्र कर लेना, उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं कहा, ना मैंने अभी कहा, आप खुद उनकी तारीफ करने लगे हैं। आपको हकीकत दिखाने लगा हूं, जरा सब्र कर लेना, वजाहत कर दें। उन चार की महर इनसे ये पूछ ले, आप खुद ही उनका बता दें गैंग ऑफ 4 कौन है। डॉक्टर साहब से ये पूछ ले कि आज अगर, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, पार्टियों पे अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, पार्टियों खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें तो मैं सब पहले कह रहा हूं कि जितनी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी में, चूंकि वाहिद जमात है जिसके शहीद कायद को तख्तादार पे लटकाया गया, शहीद बीबी को खैर मुझे बात मुकम्मल करने देना, मौजूदा आशिक अवान जैसे जो दूध पीने वाले मजनू हैं, जो दूध पीने वाले मजनू है, जो मुफाद परस्त, ये बाकी भी बहुत सारे, इतनी लंबी लिस्ट है। सिर्फ ये पूछें जो काम की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। से ये पूछें, अगर दोनों मुझे इजाजत दें वो पूछने की जो मेरा दिल कर रहा है, मुझे बात मुकम्मल करने पूछे, आप पूछें कि क्या वजह है। देखिए मैं ये बोल रही थी, मैं सवाल नहीं बोला। अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल में है, हमें मानता हूं, बिलावल साहब अब निकले हैं, क्योंकि हमारी क़ियादत रिप्लेस हो रही है, हम निकलेंगे इंशाल्लाह। हमने 18 सीटों के साथ शहीद बीबी के दौर में भी हमने पार्टी सरवाइव की थी। बात यह है कि डॉक्टर साहब जो है, इनसे ये पूछे कि आज तहरीक इंसाफ में ये गई हैं, कल अगर तहरीक इंसाफ का ग्राफ डाउन हो जाएगा फिर ये मुफाद परस्ती के लिए किस जमात में जाएंगी। बात सिर्फ ये है कि यहाँ तो मेरा मसला है, आपका अच्छा, अब बहुत हो गई। अब देखें ना, दिस इज नॉट मसला है। अगर आप अपनी फिक्र करें कि आप किधर हैं। बसरा साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, दिस नॉट फिरदौस आशिक अवान स्पेशल, वरना मैं मन कर लेती। फिरदौस आशिक स्पेसिफिक ना रहे, मुझे पीपल्स पार्टी का सवाल समझना है, और अगर आप मुझे इजाजत दें, 2013 में साहब जो दूध से आप बसरा साहब 2013 में जो दूध से प्रेसिडेंट आज एहसान फरामोश आप जैसे होते हैं, एहसान फरामोश आप जैसे होते हैं,
जब जरूरत होती मुझे है तो आप आपसे पाँव में होते सर्टिफिकेट नहीं हैं, लेना और जब वफादारी आपको का। वजारत लेनी थी मुझे तो आपसे आप पाँव से नहीं वफादारियों उठती का थी। सर्टिफिकेट ही नहीं लेना मेरे भाई। जब आप वजारत लेनी थी, मैंने अपने अवाम से लेना सर्टिफिकेट। अच्छा एक सेकंड आपसे नहीं लेना। मुझे सर एक बात बताएं, ये जो डिस्क्रिपेंसी है, एक सेकंड बसरा साहब just one second। गुल साहब मुझे एक बात बताइए कि मुश्किल वक्त का ये कह रहे हैं, मुश्किल वक्त माजी में भी आए हैं और फिर दुरुस्तगी हुई है, कहीं ना कहीं वापस अवाम का जो वो एतमाद है वो रीगेन किया गया है। आपको क्या लग रहा है 2013 के अंदर शायद मुझे लगता है कि ये विक्टिम भी बनी पीपल्स पार्टी, ये बैड गवर्नेंस के चर्चे, करप्शन के चर्चे, सो दे हैड टू पे अ प्राइस फॉर दैट। मे बी दे अंडर एस्टिमेटेड मीडिया। एक से सर मेरा गोल साहब से पार्टी बदल चुकी है, पूछिए बाद में किस पार्टी में जाना है। चले वो मेरा मसला है, आप मेरे पे स्पेसिफिक ना रहो, पीपल्स पार्टी पे आओ। मुझे बात बताइए कि ये पीपल्स पार्टी पे पार्टी आओ, मेरी जरदारी साथ साहब में ना हो। की पार्टी ना करो ऐसे, बसरा ऐसा ना करो सर, पार्टी ऐसा करो। पार्टी वफादारियों में इतना आगे ना हो, वफादारी में रहो। पार्टी वफादारी और वफादारी में फर्क वाज़ेह रखो। वफाद परस्तों के आने जाने से पार्टी ये मेरा मसला है, मेरा मसला तुम अपनी पार्टी। एक फिक्र सेकंड करो। बसरा साहब, जस्ट वन सेकंड प्लीज। जो पार्टी पर जो जरदारी साहब की गिरफ्त कमजोर पड़नी थी बिलावल के आने की वजह से, जो इम्कान था वो तो गलत साबित हुआ। अभी भी हम देख रहे हैं बाय एंड लार्ज एक ऐसे लोगों की वजह ज्यादा से कंट्रोल जो जो है उनको असल हकीकत नहीं महा- बताते, जो महार जो है वो चापलूसी और जरदारी साहब के हाथ खुशामद में है। उनको सर गलत आपको पिक्चर क्या लग देते रहा है हैं। कि आप सब अच्छा, बहुत से जियालों का सब ख्याल अच्छा था कि है। बिलावल आएगा तो एक फ्रेश ब्लड और एक जो करप्शन नेगेटिविटी हमसे नथी हुई हुई है, बैड गवर्नेंस जो सिंध में भी हम देख रहे हैं, इसका सफाया होगा। डू यू थिंक ये पावर टसल जो बाप बेटे में फुप्पी में है, ये मजीद अब गंभीर होएगी, इश्यूज को और मजीद खराब करेगी, या अब सुलझा हुआ है, अंडर कंट्रोल है मैटर? वो देखिए उसमें तो सर मैंने गोल साहब से पूछा है, एक सेकेंड। नहीं देखिए, जब जिस कदर जल्दी अगर बिलावल साहब अपने वाले साहब के साए से निकल आए, कहते हैं ना यार, ये हम सब कहते हैं, तो उतना ही हो तो बेहतर नहीं रहा होगा, ना। लेकिन हो नहीं रहा। हाँ। उसकी वजह से जिस तरह बसरा साहब ने पिछले 10-15 मिनट फिरदौस आशिक अवान साहबा के हवाले से गुफ्तगू में लगा दिए, तो इनको समझ नहीं आ रही कि बुनियादी वजह यह है कि आप शख्सियात में पड़े हुए हैं। ये जो नज़रियात की बात करें, नज़रिया सब भूल गए हुए हैं, सब अपने अपने ज़रूरतों के मुताबिक अपने इसके तरजीहात का तयन कर रहे हैं। अब बजाय इसके कि हम इश्यूज़ पे आते ये बयान करते कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में क्यों खोया और इसमें मकबूलियत में क्यों कमी आई, वो एक शख्सियत को लेके बैठे। इनसे ये पूछे कि जो बाकी जो पीपल्स पार्टी के जो लोग जो हारे पिछले इलेक्शन में, वो क्यों हारे और आया वो सब, उन सबको टिकट मिले। सारा कुछ तो दूध पीने वाले मजनू जिनको कह रहे हैं उनके मत्थे थोड़ी लगा सकते हैं। उन्होंने ये जवाब नहीं दिया, अपनी फॉल्ट्स भी ये हैं। जवाब उन्होंने नहीं दिया कि जो इन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए इनके टिकट के एवज मांगे गए, और ये कोई वाहिद मिसाल नहीं है, हम भी ऐसे लोगों को जानते हैं सब ये झूठ बोल रही हैं। मैं चैलेंज करता हूं ये गलत नहीं यार ना करें। देखें भाई साहब, मेरी ये बात सुन ले जरा पूरी। मैं झूठ बोल सकती हूं, उनकी सुन लें, मैं अपनी उनकी बात सुन पूरी लें। कर लूं। हम 2-4 आज ऐसे लोगों आपको को याद जरूर आएगा जानते वो हैं 5 जिन्होंने करोड़ जिस वक्त वजारत मैंने कहा कि उनकी सुन लें। एक सेकंड बसरा साहब, गोल साहब देखिए ये कोई कॉलेज का मुनाजरा नहीं है, मेहरबानी करें आप। ये कॉलेज लेवल पे कॉलेज लेवल की सियासत ना करें। अच्छा गुल साहब, एक से बसरा साहब, गुल साहब को तो ना इंटरप्ट करें एटलीस्ट। हाँ जी, वो मैं ये कहना चाह रहा कि हम भी ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने टिकट के लिए दरख्वास्त दी और उनको कहा गया कि इतने करोड़ रुपए इसके साथ जमा करा दे। तो ये जो टिकटों की फ़रोख्त थी, पहले हम ये समझा करते थे कि सिर्फ 2-4 फैमिलियाँ करती हैं, लेकिन बाद में समझ आई कि जो पार्टी के सरबराह हैं, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी में भी ये देखने में आया, और मैं स्पेसिफिकल पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पे जब से जरदारी साहब ने ये कारोबार संभाला, तो उसमें बदकिस्मती है कि आपने पार्टी के टिकटों को भी एक अपनी तजारत का ज़रिया बना लिया। हालांकि किसी ने नहीं पूछा होगा कि जब पार्टी के नाम पे आपने 5 या 10 करोड़ उम्मीदवारों से लिए, वो कहाँ गए? अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है पार्टी के अंदर। ग्रोहों, उनने तो 4 की बात कर ली, ग्रुप्स की बात कर ली। आपको लगता है अपनी हाकिमियत में जरदारी साहब ने शायद अपने दोस्तों को जो नवाजा, उससे भी कहीं ना कहीं जो कुर्बानी देने वाले कारकुनान थे, जैसे जावेद पाशा सामने आए, डॉक्टर आसिम आए, इनके भाई उवैस मुजफ्फर टप्पी सामने आए, और भी बहुत से इस तरह के नाम हैं जिनको कलीदी के, इवन बाबर अवान साहब को, बिकॉज एक वो रिश्ता प्यार मोहब्बत का था पहला, वो कोर्ट के अंदर उन्हें बड़ी, जब वो जेल में थे, बड़ी उनका साथ दिया था, इन लोगों को एकदम इधर पहुंचा दिया। यू थिंक दैट आल्सो क्रिएटेड अ काइंड ऑफ आप देख रहे हैं उसमें सिंध की जो हालत है उसको देख लें कि वहाँ पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गंदगी का मसला है, टोटल ठीक है। उसके अलावा जो एक मिसाल हमें पता है जिसको कहते हैं फर्स्ट या सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, कि पानी सिंध में पानी के नाम पे आज भी कितने अरब रुपए माहाना
जो है एक ऐसी कंपनी को जाते हैं जो समझा जाता था कि जरदारी साहब या उनके बहुत करीबी लोग, जिसमें डॉक्टर ये शर्जील मेमन भी शामिल थे, कि उसमें ये तमाम लोग मुलविस थे कि उसकी भी मैं जिम्मेदार हूँ जी, मतलब क्योंकि वो उसमें और ये बसरा साहब मेहरबानी कीजिएगा ये सुन ले कि एक ऐसी स्कीम है कि जिसमें कागज़ पे कुछ 350 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कायम किए गए सिंध में आवाम को पीने का साफ़ पानी मुहैया करने के लिए, और कागज़ पे शायद 50-60 मौजूद हैं। जरदारी साहब पार्टी की बाग छोड़ के बिलावल को दे दें सब कुछ, तो ये कुछ कहीं नाव लग सकती है पार्टी। आपने जो असल वजह है, जो रूट काज है इस वक्त पार्टी के साथ डिस्कनेक्ट होने की लोगों की, आप उसकी तरफ आए बताइए ना। रूट काज है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि या हुकूमत होती है जब भी पाकिस्तान बना, या उसके मुकाबले में अपोजिशन होती है। पाकिस्तान के अंदर कभी भी ये तीसरा जो कॉन्सेप्ट था या तीसरी जमात थी, ये उस वक्त आई, ये उस वक्त वजूद में आई जब ऊपर बैठी दोनों सियासी जमातों ने आपस में मुकमका कर लिया। लोग जो थे, एक हुकूमत के सताए हुए लोग जो होते थे, वो जो अपोजिशन पार्टी होती थी, जो हारी हुई जमात होती थी, लोग उसकी तरफ देखते थे कि जनाब ये जो गलतियां हुकूमत कर रही है, ये मेरी जो दूसरी पीछे बैठी जमात है, ये मेरी मदद करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्शन हार लिया तो उसको वो जो ट्रू अपोजिशन का रोल था, तो आप कह रही हैं करप्शन और इल्जामात से बढ़कर ये इश्यूज हैं। ये इशू इसलिए कि आपको लग रहा है करप्शन और इल्जामात जो है वो पार्टी के साथ उतना मुतासिर नहीं कर रहे जितना ये बात कर रही है। 2013 में हमने वो खमियाजा भुगत लिया था। हमने 2013 का इलेक्शन हारने के बाद वो कीमत अदा कर दी थी। लोगों का गुस्सा पार्टी के हवाले से जो था वो निकल गया था। उसके बाद अगला 4 साल का सफर था ना, जो हमने लोगों को एंगेज करना था, एम्पावर करना था, अपनी पॉलिसीज से उनको हमने ये कहना था कि देखें ये हुकूमत यहाँ गलतियां कर रही है, हम इनका रास्ता रोकेंगे, हम इनके रास्ते में खड़े होंगे। वो 4 साल हम सिंध की हुकूमत बचाने में हमने सर्फ कर दिए। हमने पंजाब को फोकस ना किया, हमने सिर्फ ये देखा कि चूंकि हम सिंध में हुकूमत में और हम 10 साल मुसलसल हुकूमत करने के उसके अंदर बावजूद क्या प्रॉब्लम आई, मामलात भी हल नहीं कर सके। उसमें मैं जो 146 सीट्स हैं जो पंजाब में, आप भी खुल के नहीं बता रही कि मसला, मुझे नहीं मसला बड़ा क्लियर है। जब मफादात होंगे, मफादात अवामी मसाइल प्रायोरिटीज पे नहीं रहे ना, आपने लोगों की सियासत नहीं की, आपने अपनी जाती मफादात की सियासत की, आपने चंद अफराद की उनके को बचाने की सियासत की, आपने वो अवामी इश्यूज जो थे उनको नजरअंदाज किया। आपने नून लीग को जो कन्फ्रंट करना था, मौजूदा हुकूमत को जो आपने आड़े हाथों लेना था, जो पार्लियामेंट के अंदर आपने खड़े होके उनकी तमाम आवाम के साथ होने वाली ज्यादतियों पे आवाज उठानी, अच्छा, आप उनने उसके सियासी जनाजे को कंधा दिया। जब वो हुकूमत डूबने लगती आप उसके रेस्क्यू के लिए आ जाते। अब वो लोग जो खड़े थे हुकूमत के सताए हुए, वो जब देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस हुकूमत को रेस्क्यू कर रही है, उन्होंने अपना रुख जो है उस तरफ कर लिया जिस तरफ अपोजिशन हो रही थी इस हुकूमत की। उसमें पीटीआई का कोई कमाल नहीं है। पीटीआई की एक जदोजहद और एक स्ट्रगल थी, लेकिन उसमें पीपीपी ने अपनी स्पेस दी। जी बस पीपीपी ने अपने वोटर्स को उनका मौका भी सुन लेते हैं। हाँ जी बस कर लें। देखिए मेहर बात ये है, मैं पहले कह चुका हूँ पार्टियों पे मुश्किल वक्त भी आते हैं और पार्टियां बहरानों से निकलती भी हैं। हमने 18 सीटें शहीद बीबी के दौर में ली, उसके बाद जिसमें असेंबली के अंदर डॉक्टर साहब ने वजारत ली, हमने पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाई। अब चूंकि बिलावल साहब एक क़यादत के तौर पर सामने आ रहे हैं, इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। बात यह है कि आज ये बातें डॉक्टर साहब बड़ी वाज कर रही हैं और बड़ा लेक्चर दे रही हैं, इनसे ये पूछें जब पार्टी मीटिंग्स होती थी, बजाय स्वाय खुशामद के, स्वाय आप अपना सीधा खानी के, कभी ये बातें आपने पार्टी मीटिंग्स में की? आखिरी मीटिंग तक आप तो मैं यही बात यही रोक के पहले ये बात कर लेना, प्लीज मुझे बात मुकम्मल पहले इसका ठीक है करो। अच्छा बोलो। अब इनसे ये पूछ लें कि आपने अगली पार्टी में किस में जाना है जब पीटीआई को अपनी गालियां देनी है और देखिए मेरा मतलब मेरे पे आ रहे हो जवाब दो, जो सवाल किए हैं वो गलत है या ठीक है। बात सुन ले, बात ये है, वो एक शेर है ना, मुझसे मेरे आगे चलो, ये पुरानी बात, आगे चलो। वो कहते हैं मुझसे मेरे वतन इतना टाइम नहीं है ना, मुझे पता है आपको ये टाइम
टाइम स्पेसिफिक प्रोग्राम है, वो मैं और तुम अकेले बैठ के अपनी भड़ास निकाल लेंगे। और ये बात भी सुन लें, अगर इंशाल्लाह सोना साहब भी गए थे पार्टी छोड़ के, जमानत जब्त हो गई थी, आपको भी देख लीजिएगा अनकरीब आपके साथ क्या होता है। और दूसरी बात, मेहर बात ये है, इधर ही घोड़ा इधर ही मैदान, बिस्मिल्लाह। अच्छा सबर तो कर लो, आप तशरीफ लाए वहाँ, सबर कर ले। फिलहाल तो आप वहाँ से क्लीन बोल्ड हो गए, अब लाए किसको लाना है? सबर कर ले, आप खुद ही आ जाओ मेरे प्यारे भाई, इतने प्यारे भाई, तुम खुद क्यों नहीं उस हल्के में आ जाते? इतने जाने वाले वहाँ मौजूद हैं, तो तुम खुद तशरीफ लाओ, मुझे खुशी होगी। देखो जियाला है मेरे मुकाबले। बसरा साहब कोई जमात की कारकर्दगी पे जमात इश्यूज पे आओ, इश्यूज पे। क्या ये जो चीजें मैंने कही गलत है या ठीक है? आज शो खत्म हो जाएगा, इस तरह बात कीजिए। हाँ जी, वो एक शेर है ना कि मुझसे मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। यहाँ पर सिवाय 90% लोग इस वक्त हो क्या रहे, कर क्या रहे हैं कि मंजूर गुलाम हैदर भाई साहब के साथ थी पूरी की पूरी पार्टी, अगले दिन चढ़ा इस पे आए ना पूरे पाकिस्तान की सियासत का थीसिस ना दे, जो जा रहे पूरी सियासत का थीसिस ना दे, पीपल्स पार्टी पे आए। पार्टी का आप इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? आप पीपल्स पार्टी की परेशानी ना करें, आप इंशाल्लाह। नहीं, मुझे आपके सवाल जो हुआ है उसका जवाब दो ना। लेनी थी डॉक्टर साहब, आपने जो वजारत झूलनी थी, जो करप्शन करनी थी, मेरे अलावा इतना लंबा लिस्ट है मफाद परस्तों की जो आ रही है, तुम्हें छोड़ के उसकी फिक्र करो ना। क्यादतों को वैसे बसरा साहब अगर आप इजाजत दें, हमारी क्यादतों को भी ये सोचना चाहिए कि वो लोग जिनका पार्टियों से कोई वास्ता नहीं होता, जो सिर्फ मुफाद परस्त होते हैं, हम जब इख्तियार में आते हैं उनको वजारतों से नवाजते हैं। इसीलिए प्यारे भाई, अच्छा एक बात होता है, इम्तियाज सफदर वड़ाई जो नजर गोंदल को किस आप उनसे अपना मुआवजा ना करें, वो तो बताओ ना, वो ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करो क्यों किया छोड़ा? शाह महमूद कुरैशी कैसे छोड़ गए, वो भी मुफाद परस्त थे। बताएं, लिस्ट बताएं ना। तो बस देखिए शाह महमूद कुरैशी, वड़ायत साहब, गोंदल साहब, इनमें से मुझे बताएं, चलिए बाकी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है जो आ रहे हैं। डॉक्टर साहब को चुप कराएं तो मेरी बात सुन ले। सुजियां हो गई हैं, गलियां में मिर्जा यार फिरे, उधर तुमने और तुम्हारा गैंग ऑफ फोर उसी ने फिरना है। आप जैसे मेरे बहुत सारे लोग आए जो पीपल्स पार्टी को खत्म करने की ख्वाहिश लेकर दुनिया से चले गए। डॉक्टर साहब आप जो है ना, हम नहीं चाहते पीपल्स पार्टी खत्म हो, हम चाहते हैं अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। वो गलतियों से सीखिए, ग्रो करें। एक सेकंड, स्टॉप प्लीज, एक सेकंड, मुझे एक बात के सामने आपको भी अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। एक सेकंड सबर कर ले। हम चाहते हैं कि वो ग्रो करें। आप चुप करेंगे तो वो करेंगे। एक सेकंड, मुझे गुलशन एक बात है, हजार एक फिक्र। देखिए बात ये है, फिर काम की बात कीजिएगा। ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उनके नजरिए एक ही नुक्ता नजर है कि शायद वो पीपल्स पार्टी से अपनी सीट नहीं निकाल सकते, वो तहरीक इंसाफ में जाएंगे तो अपनी सीट निकाल सकेंगे। मैं इस बात को एडमिट करता हूं, इस बात को मान लें। तो मुझे बताइए, आपकी सारी तवनाई लग गई है इन मुफाद परस्तों पे सो कॉल्ड। आपने एक दफा भी ये नहीं बताया कि शायद अपने से कहां गलती हो रही है, दुरुस्ती कैसे हो सकती है? हम अपनी सफों को दुरुस्त करेंगे, हमें सख्त मेहनत की जरूरत है, हमें बुरी भाग दौड़ की जरूरत है। हम अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। बिलावल जवानी को पहुंच चुका है, कब नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त पार्टी पे आए तो ये मुफाद परस्त और दूध पीने मजनू और ज़मीर फरोश पार्टी छोड़ के पार्टी। अच्छा मुझे बात बताइए, इलेक्शन जो था ना, मैं एक सेकंड, 2013 का इलेक्शन जो था ना, वो पीपल्स पार्टी का कर्जा अदा किया। क्या अदा किया कर्जा आपने? क्योंकि 2013 में एक भी टिकट नहीं था। इम्तियाज साहब के जो मैं इस्लामाबाद में एज अ मिनिस्टर रही हूँ, मैंने एक टिकट चैलेंज करती हूँ, और मैंने 2000 ये छोड़ दें, ये पुरानी बात है, इस पे बात हो चुकी है मेरे भाई, क्लीन चिट में लेके आ चुकी हूँ। आपके पास कोई चीज है तो नहर के प्रोग्राम में ले आए, आप मुझे खुशी होगी। आपके पास कुछ चीज है मेरे खिलाफ, हम नैब की तो ले आए ना, आप नैब की ले आए मेरे प्यारे भाई, वो उन्होंने क्लीन चिट दी है, इस चीज को छोड़ दो, आर्गुमेंट पे आओ। अच्छा, जातियात को छोड़ दो। ये आर्गुमेंट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाह रही हूँ, जब आप पीटीआई की क़यादत से मिली और ये सारी इंटरव्यूज हुए, बातें हुई, तो उन्होंने कोई सवाल पूछे थे नैब में जो केस पूछा, सारी डिटेल्स आपको पता है कि वही क्लीन चिट जो नैब ने मुझे दी थी, मैंने उस वक्त क्लीन चिट से मुराद है केसेस क्लोज हो गए, कोई एविडेंस नहीं था, कोई किसी इंक्वायरी थी ना। मसलन इम्तियाज गुल साहब मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देते हैं कि डॉक्टर साहबा ने, या मैं इनके खिलाफ देती हूँ कि इन्होंने मिस यूज किया जी ये बसेस पब्लिक फंड्स को भी, ये वो पीटीवी के भी कुछ केसेस थे कि एम्प्लॉइज लगाए सियालकोट में, बाकी आप सब गलत थे, सब गलत, एक भी चीज तो क्लीन चिट। मैं आपको कह रही हूँ कि आप नैब का भी नंबर मिलाएं, डीजी नैब को कॉल करें,
उनसे आप कहें कि डॉक्टर साहबा के खिलाफ कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई रेफरेंस, कोई चीज, एवरीथिंग आपके ख्याल में ऐसे हो सकता था? I wanted to know because they take the high moral ground ना कि हमें ट्रांसपेरेंसी और इंसाफ। मैं बताऊं, जो जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिली थी हमने उस प्रोसेस में एंगेज ही नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बताएं गुल साहब कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये जरदारी साहब को वैसे तो एक सेकंड बसरा साहब किसी और उस पार्टी में जा रहे हैं लॉन्ड्रिंग पार्टी। वो जब किसे पिटे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सर एक सेकंड, जब वो मैटर ही नहीं कर रहे तो आपको बसरा साहब, मेरी पार्टी और आपने पार्टी साथ बसरा साहब आप आने वाले इलेक्शन की एक सेकंड, मेरा आखिरी सवाल प्लीज। पंजाब में आपका क्या हाल होने जा रहा है? जमानतें जब्त हो रही हैं आप लोगों की और तुम्हारी सबसे पहले होनी है। हमारे हल्के में तुम्हें जगह किसी ने नहीं देनी और आप सिर्फ चापलूसी की कीमत, एक सेकंड चापलूसी का अपने हल्के में किसी जगह जलसा तो करना देते जाते, फिर देखना क्या बनता है। बसरा साहब बस मेरे कहने पे खामोश। मैं तो दावा दे रही हूँ तुम आओ तो सही, मेरे हल्के में इलेक्शन लड़ो बेटे, आके पॉपुलैरिटी टेस्ट हो जाएगी। आपको मैं तो दावा दे रही हूँ तुम्हें। भारत की पार्टी का टिकट मिला वहां भी चली जाएगी आपका। बसरा साहब मेरे कहने पे बड़ा जरूरी सवाल है, आपके इंटरेस्ट के लिए भी ये सुनना है इसे। मुझे समझ नहीं आती, 100 तनकीद अपनी जगह, एक चीज का एक नहीं कई चीजों का क्रेडिट जरदारी साहब को देना पड़ेगा। एक सबसे पहले आप जानते हैं उन्होंने पहली बार 5 साल की हुकूमत खत्म कराई, सारा कुछ किया। एक सेकंड, 4 साल उसके बाद उस पे पानी फेर दिया, आज याद आ रही है केतु और चोरों को कंधा दे के। there is so much to his credit. सदारती इख्तियारात जो है असेंबली को दिए, एनएफसी के जरदारी साहब की हड्डियों में ऐसे लोग बैठे, he did so much. ऐसे लोग बैठे जरदारी साहब, फिर भी पीपल्स पार्टी के लिए वबाले जान है, फिर भी ये मानेंगे नहीं बसरा साहब सर, मगर पंजाब में तो लोग टिकट पे उनकी अभी तस्वीर नहीं लगाना चाह रहे थे, बाई इलेक्शंस के अंदर भी लोग खड़े नहीं हो रहे थे। बात है कि मीसाक जमहूरियत जो हुआ एक से भी आप देंगे जवाब, एक से उसके तहत तमाम पार्टियों ने इस पे इत्तेफाक किया था कि हम आइन की मुख्तलिफ जो शिकें उसमें तरामीम करेंगे। तो आपको पता 27 रुकनी कमेटी थी, पार्लिमानी कमेटी, सिर्फ ये जरदारी साहब का कमाल नहीं था मगर उनके होते हुए ही मेड इट पॉसिबल। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, स्मूथ ट्रांजिशन की, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी ने सर मुफाहमत के चर्चे कर दिए। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ, नवाज शरीफ का सियासी कंधा जो है वो पार्टी की जड़ों में तेजाब बन गया। साहब उसमें देखें जो सबसे बड़ा गलत जो काम हुआ 18वीं तरमीम के नतीजे में कि उसमें आपने पार्टी के सरबराह को एक मुतलकुल अनान बना दिया, यानी चाहे आप सदर हैं या वजीर आजम हैं नहीं हैं, लेकिन कोई भी पार्टी का रुकन अगर आपसे रूगर्दानी करता है, आपके हुक्म अदूली करता है, तो आप उसको पार्टी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपने ये सूबाई खुद मुख्तारी वगैरह की जो बात हुई थी, इन्होंने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, आपको मालूम है कि 18वीं तरमीम में हमने 18 महकमे जो थे वो 18 वजारतें ख़त्म कर दी थी। इन्होंने कातिल लीग को अकोमोडेट करने के लिए 10 नई वजारतें इन्होंने तो जब आप कंप्रोमाइज जो करते हैं ना, जब उसमें बहुत सारी और बातें कि ऐसे नाराज लोग अब छोड़ के ना जाएं, नाराज लोग अब छोड़ के ना जाएं और नए लोग शमूलियत इख्तियार करें, क्या करना होगा उसके लिए? मुख्तसर थोड़े बहुत उसूलों की सियासत करनी पड़ेगी, असूलों और अवामी मफादात को बालातर रखना होगा। जिन अवाम के वोट की पुष्ट पे ये सवार होके ईवान इक़्तिदार में पहुंचते हैं, उन अवाम के मफादात का ख्याल रखना के साथ आप जब खड़े होंगे, नून लीग को सियासी कंधा देंगे, पीपल्स पार्टी का जियाला आपसे लाताल्लुक हो जाएगा। ओके बसरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी की आदतों को बचना होगा, वरना ये हालात ऐसे होते रहेंगे। ओके, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाह रही हूँ, जब आप पीटीआई की क़यादत से मिली और ये सारी इंटरव्यूज हुए, बातें हुई, तो उन्होंने कोई सवाल पूछे थे नैब में जो केसेस पूछा, सारी डिटेल्स आपको पता है कि वही क्लीन चिट जो नैब ने मुझे दी थी, मैंने उस वक्त क्लीन चिट से मुराद है केसेस क्लोज हो गए, कोई एविडेंस नहीं था, कोई किसी इंक्वायरी थी ना। मसलन इम्तियाज गुल साहब मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देते हैं कि डॉक्टर साहबा ने, या मैं इनके खिलाफ देती हूँ कि इन्होंने मिस यूज किया जी ये बसेस पब्लिक फंड्स को भी, ये वो पीटीवी के भी कुछ केसेस थे कि एम्प्लॉइज लगाए सियाल कोर्ट में, बाकी आप सब गलत थे, सब गलत। एक भी चीज तो क्लीन चिट, मैं आपको कह रही हूँ कि आप नैब का भी नंबर मिलाएं, डीजी नैब को कॉल करें, उनसे आप कहें कि डॉक्टर साहबा के खिलाफ कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई रेफरेंस, कोई चीज, एवरीथिंग
آپ کے خیال میں ایسے ہو سکتا I wanted to know because they take the high moral ground نا کہ ہمیں ٹرانسپیرنسی اور انصاف. میں بتاؤں جو جب تک مجھے کلین چٹ نہیں ملی تھی ہم نے اس پروسیس میں انگیج ہی نہیں ہوا. اچھا مجھے بتائیں گل صاحب کہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ زرداری صاحب کو ویسے تو ایک سیکنڈ بسرا صاحب کسی اور اس پارٹی میں جا رہے ہیں لانڈرنگ فنڈ. وہ جب گھسے پٹے ہیں تو آپ کو پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ سر ایک جب سیکنڈ وہ میٹر ہی نہیں کر رہے تو آپ کو کیوں پرابلم بسرا صاحب میری پارٹی اور آپ نے پارٹی بسرا صاحب آپ آنے والے الیکشن کی ایک فکر سیکنڈ میرا آخری سوال کہ پلیز. پنجاب میں آپ کا کیا حال ہونے جا رہا ہے؟ ضمانتیں ضبط ہونی ہے آپ لوگوں یار کی آخری اور سوال تمہاری سب سے پہلے ہونی ہے. ہمارے ہمارے حلقے میں تمہیں جگہ کسی نے نہیں دینی اب اگلی پارٹی اور آپ صرف چاپلوسی کی قیمت ایک سیکنڈ چاپلوسی کا اپنے حلقے میں کسی جگہ جلسہ تو کرنا بیٹے جانے پھر دیکھنا کیا بنتا ہے. بسرا صاحب بس میرے کہنے پہ خاموش. میں تو دعوت دے رہی ہوں تم اتنے پاپولر ہو تم آؤ تو صحیح میرے حلقے میں الیکشن لڑو بیٹے آ کے پاپولیرٹی ٹیسٹ ہو جائے گی. میں تو دعوت دے رہی ہوں تمہیں. بھارت کی پارٹی کا ٹکٹ ملے گا وہاں بھی چلی جائے گی. آپ کا بسرا صاحب میرے کہنے پہ بڑا ضروری سوال ہے آپ کے انٹرسٹ کے لیے بھی یہ سننا ہے اسے. مجھے سمجھ نہیں آتی 100 تنقید اپنی جگہ. ایک چیز کا ایک نہیں کئی چیزوں کا کریڈٹ زرداری صاحب کو دینا پڑے گا. ایک سب سے پہلے آپ جانتے ہیں انہوں نے پہلی بار 5 سال کی حکومت ختم کرائی. سارا کچھ کیا. ایک سیکنڈ 4 سال اس کے بعد اس پہ پانی پھیر دیا. آج یاد آ رہی ہے ڈکیتوں اور چوروں کو کندھا دے کے. there is so much to his credit. صدارتی اختیارات جو ہے اسمبلی کو دیے, NFC کے زرداری صاحب کی ہڈیوں میں ایسے لوگ بیٹھے. He did so much. ایسے لوگ بیٹھے زرداری پھر بھی صاحب پیپلز پارٹی کے لیے وبال جان ہے. پھر بھی یہ مانیں گے نہیں بسرا صاحب سر, مگر پنجاب میں تو لوگ ٹکٹ پہ ان کی ابھی تصویر نہیں لگانا چاہ رہے تھے بائی الیکشنز کے اندر بھی. لوگ کھڑے نہیں ہو رہے تھے. بات ہے کہ میثاق جمہوریت جو ہوا ایک تھا سے بھی آپ دیں گے جواب. ایک سے اس کے تحت تمام پارٹیوں نے اس پہ اتفاق کیا تھا کہ ہم آئین کی مختلف جو شکیں اس میں ترامیم کریں گے. تو آپ کو پتہ 27 رکنی کمیٹی تھی, پارلیمانی کمیٹی. صرف یہ زرداری صاحب کا کمال نہیں تھا مگر ان کے ہوتے ہوئے ہی میڈ اٹ پاسبل. پاکستان کب پہ کا نعرہ لگایا, اسموتھ ٹرانزیشن کی. اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی نے سر مفاہمت کے چرچے کر دیے. لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا, نواز شریف کا سیاسی کندھا جو ہے وہ پارٹی کی جڑوں میں تیزاب بن گیا. ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں جو سب سے بڑا غلط جو کام ہوا 18ویں ترمیم کے نتیجے میں کہ اس میں آپ نے پارٹی کے سربراہ کو ایک مطلق العنان بنا دیا. یعنی چاہے آپ صدر ہیں یا وزیر اعظم ہیں نہیں ہیں, لیکن کوئی بھی پارٹی کا رکن اگر آپ سے روگردانی کرتا ہے, آپ کے حکم عدولی کرتا ہے, تو آپ اس کو پارٹی سے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ نے یہ صوبائی خود مختاری وغیرہ کی جو بات ہوئی تھی, انہوں نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے, آپ کو معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم میں ہم نے 18 محکمے جو تھے وہ 18 وزارتیں ختم کر دی تھیں. انہوں نے قاتل لیگ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے 10 نئی وزارتیں انہوں نے جی آئی ریمبر. جب آپ کمپرومائز جو کرتے ہیں نا, جب اس میں بہت ساری اور باتیں کہ ایسے ناراض لوگ اب چھوڑ کے نہ جائیں, ناراض لوگ اب چھوڑ کے نہ جائیں اور نئے لوگ شمولیت اختیار کریں, کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ مختصر تھوڑے بہت اصولوں کی سیاست کرنی پڑے گی, اصولوں اور عوامی مفادات کو بالا تر رکھنا ہوگا. جن عوام کے ووٹ کی پشت پہ یہ سوار ہو کے ایوان اقتدار میں پہنچتے ہیں, ان عوام کے مفادات کا خیال کرنا. نون لیگ کے ساتھ آپ جب کھڑے ہوں گے, نون لیگ کو سیاسی کندھا دیں گے, پیپلز پارٹی کا جالا آپ سے لا تعلق ہو جائے گا. اوکے بسرا صاحب بہت بہت شکریہ. پارٹی کی عادتوں کو بچنا ہوگا ورنہ یہ حالات ایسے ہوتے رہیں گے. اوکے اور آپ کو بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی.